Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 27th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे. In this video, we'll talk about the rainfall pattern in Assam. So, the monsoon season is here. There is some part of India who is receiving deficit rainfall, whereas Assam is receiving excess rainfall. So in this video we'll talk about the rainfall pattern in Assam. Then we'll talk about India and Vietnam's defense ties. So this topic is important from bilateral point of views because recently कुछ bilateral talks हुई हैं इंडिया और वियतनाम के बीच में, and this basically in bilateral talks में maritime domain has been taken as a central stage. So from here, India and Vietnam's defense relations become important. And then lastly, we'll talk about MSMEs, how to bring MSMEs into the sustainable global value chains. We'll understand the importance of MSME and the significance of bringing MSMEs into the sustainable global value chains. So let's begin with it. So starting with our first topic, which is about the rainfall pattern in Assam. So we all are following the news and we know that Assam is receiving the excess rainfall this monsoon season. So in this video we'll understand more about the arrival of monsoon this year, how monsoon has been so far, and what are the factors which basically determine the rainfall pattern, and what could be the disturbances to the monsoon in India. So this topic is very important from a geography point of view. In your geography classes, you learn about Indian monsoon, and in this video, I'm giving you the update about this year's monsoon. So let's begin with it. तो सबसे पहले monsoon के अराइवल की बात करें तो इंडिया में यूजुअली 1 जून को हम monsoon की अराइवल डेट मान के चलते हैं, which accounts for about 80% of the rainfall in the country. So monsoon is the most important rainfall type of rainfall that India receives. 80% हमारी जो rainfall है वो monsoon से आती है. monsoon को हम हमारा finance minister बोलते हैं. 80% rainfall monsoon से India receive करता है. बट यूजुअली 1 जून को हम मान कर चलते हैं कि अराइवल का मॉनसून का अराइवल होगा, बट इस साल मॉनसून केरला 3 दिन पहले पहुंच गया फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डेट. एंड पहले तो पहुंचा, लेकिन उसके बाद जो वेस्टर्न ब्रांच की जो जर्नी थी अपवर्ड्स वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई. आप जब अपनी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मॉनसून के बारे में, यू सी दैट कि हमारा जो मॉनसून है उसे हम 2 ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द पेनिनसुला ऑफ इंडिया. वन इज़ द वेस्टर्न ब्रांच जो कि अरेबियन सी से होकर गुजरती है, एंड द अदर वन इज़ द ईस्टर्न ब्रांच जो कि बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरती है. इसीलिए अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है वेस्टर्न ब्रांच, उसे हम अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, और ईस्टर्न ब्रांच को हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं. केरला जहाँ पे बेसिकली अरेबियन सी ब्रांच पहुँचती है, सबसे पहले नॉर्मल डेट से 3 दिन पहले पहुँच गई, बट आफ्टर दैट जो वेस्टर्न कोस्ट के अलॉन्ग जो मूवमेंट थी जो वेस्टर्न ब्रांच की, वो थोड़ी सी स्लगिश रही. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो सेंट्रल इंडिया है दे हैव सफर्ड डेफिसिट रेनफॉल. लेकिन अगर हम आसाम और मेघालय की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की बात करें, सो यहाँ पे काफ़ी एक्सेस में रेनफॉल देखने के लिए मिली है, and that has even led to widespread floods in Assam and Meghalaya as well. And जो हमारे की monsoon months हैं जुलाई एंड अगस्त, so it is expected कि इन 2 months में 2/3 of the monsoon rainfall जुलाई और अगस्त में हमें मिलेगी. तो ये थी अराइवल की बात. अभी तक monsoon कैसे रहे हैं, how has been monsoon so far this year. देखिए, अभी अगर हम 1 जून से लेकर 23 जून तक अगर हम एनालाइज करें तो कंपैरेटिवली वी हैव रिसीव्ड 2% लेस रेन दिस ईयर. यूजुअली जितनी बारिश होती है जून के महीने में, यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वो 1 जून से लेकर 23 जून तक का है हर साल का. सो उसके एवरेज के हिसाब से इस साल 2% लेस रेनफॉल मिली है. टोटल रेनफॉल
सेंट्रल इंडिया में 34% कम हुई है इन दिस टाइम पीरियड एंड पेनिनसुलर इंडिया में 15% ओवरऑल रेनफॉल डिक्रीज हुई है। तो सेंट्रल इंडिया में 34% रेनफॉल कम है और पेनिनसुलर इंडिया में 15% रेनफॉल इस बार कम रही है। वेयर एज यही अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे कंपैरेटिवली 32% ज़्यादा रेनफॉल हुई है और इवन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 7% ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने के लिए मिली है। सो कैन यू सी दिस? एक पार्ट ऐसा है सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ पे रेनफॉल परसेंटेज डिक्रीज हुआ है एंड देन इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न इंक्रीज हुआ है बट सबसे ज़्यादा आपको जो एक्सेस ऑफ रेनफॉल मिली है दैट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिस्ट, ये जो रिसेंटली जो हैवी रेनफॉल मिल रही है इसके पीछे जो मेन रीज़न है दैट इज़ ईस्ट वेस्ट ट्रफ, ईस्ट टू वेस्ट ट्रफ, दैट इज़ लो प्रेशर रीजन इन द लो लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट ट्रफ पहुँचा हुआ है, लो प्रेशर पहुँचा हुआ है, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल की तरफ से बहुत बड़े स्केल पे साउथ एंड साउथ वेस्टर्ली विंड्स दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट टू वेस्ट ट्रफ दैट एयर इज राइजिंग एंड गिविंग दैट रेनफॉल। तो जो ट्रफ है वो ईस्ट टू वेस्ट में लाई कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू IMD वी टॉक ओनली अबाउट आसाम। So Assam has received 41% more above rainfall during the pre-monsoon season itself, अगर हम मार्च से मई की बात करें और अगर अप टिल जून को भी कंसिडर कर लें, मानसून सीजन भी ले लें तो 71% मोर देन नॉर्मल रेनफॉल आसाम में हुई है। एंड हियर इफ यू टॉक अबाउट अ स्टडी बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, they will reveal that Assam has been witnessing a decreasing trend in average monsoon। 1870 से लगातार आसाम के अंदर जो मानसून का ट्रेंड था, जो रेनफॉल थी, वो थोड़ी डिक्रीज ही कर रही थी बट स्टिल आसाम इज एक्सपीरियंसिंग दिस सडन डाउनपोर डेज विच हैज़ लेड टू दिस फ्रीक्वेंट फ्लडिंग इन आसाम। सो व्हाट कुड बी द फैक्टर्स दैट आर डिटरमाइनिंग द रेनफॉल पैटर्न? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम आसाम वैली की बात करें तो आसाम को ये जो एक्सेसिव रेनफॉल मिल रही है या फिर इनसफिशिएंट रेनफॉल मिल रही है टाइम टू टाइम, दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंसेस ऑफ वन प्लेस टू द अनदर। आसाम को दोनों चीज़ें मिलती हैं, कभी एक्सेसिव रेनफॉल होती है, कभी इनसफिशिएंट रेनफॉल होती है। क्लाइमेट चेंज का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है because climate change is increasing the water and the surface temperature of Arabian Sea and Bay of Bengal up to 2 degrees Celsius, जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर एरियाज बन जाते हैं that result in heavy rainfall। So climate change is also an important issue। प्लस जब बायोमास को बर्न करते हैं तो जो ब्लैक कार्बन जो निकलता है, जो एरोसोल्स निकलते हैं, दिस लीड टू डिक्रीज इन लो इंटेंसिटी रेनफॉल। इससे जो प्री मॉनसून सीजन है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे हमें ज़्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिली। दीज कुड बी द फैक्टर्स, ecological factor, climatic factor, climate change is an important factor, and also there is role of the black carbon emission। इसके अलावा तो आप अपनी जोग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स मॉनसून को डिसरप्ट कर सकते हैं। सो देयर कुड बी डिप्रेशंस, ये जो डिस्टर्बेंस है मानसून में, कहीं पे भी कहीं लो प्रेशर बन गया तो उसी एरिया के अंदर एक छोटे से एरिया में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। तो डिप्रेशंस अगर लोकली कहीं बन गए हैं दैट कैन डिस्टर्ब द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। देन द पोजीशन ऑफ द ट्रफ, जो ऑफशोर ट्रफ है, जो वॉर्टेक्स है, वो कहाँ पे रहेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली जो पोजीशन होती है दैट इज़ अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो इससे इंडिया का जो मानसून पैटर्न है, जो रेनफॉल है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इंडिया का जो मानसून है ये इट इज़ ऑल्सो रेटेड बाय द ग्लोबल फिनोमिनास एल नीनो एंड ला नीना। हमने इसको डिस्कस भी किया था ला नीना को। एल नीनो इज़ अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन
तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है मानसून के ऊपर। ला नीना इज़ अनयूजुअल कूलिंग, एंड इससे आपको काफ़ी अच्छे मानसून्स मिलते हैं, तो इनका भी इम्पैक्ट इंडियन मानसून के ऊपर रहता है। देन देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक इंडियन ओशन डाइपोल, where you compare the temperature of Arabian Sea and Bay of Bengal. Then there is maiden Julian oscillation, जो कि आपके मैस्करिन हाई से हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी बेसिक जीएस जोग्राफी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मानसून सीजन चल रहा है, मानसून पढ़िए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून एंड ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मानसून डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है। This is the good time to read monsoon and also to follow the trends. After this, we'll talk about India and Vietnam's defense ties. So as we discussed recently, India and Vietnam, they had talks, and in these talks, the maritime domain has taken the central stage. So, what are the key elements that have made India and Vietnam natural partners? बोथ इंडिया और वियतनाम की अगर हम बात करें तो वियतनाम इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, स्पेशली अगर हम इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें। हमारी इंडो पैसिफिक विजन के अंदर भी वियतनाम का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही कंट्रीज़ एक रिच हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन आपस में शेयर करते हैं। वी हैव आवर कल्चरल लिंकेजेस ऑल्सो विच स्पैन ओवर 2000 years. Both the countries, they share a comprehensive strategic partnership since 2016 and defense cooperation. ये दोनों ही चीज़ें, comprehensive strategic partnership और जो defense cooperation इंडिया और वियतनाम में है, these are the key pillars of partnership. Bilateral defense engagement की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी expand हुए हैं. This will include the defense policy dialogue, military to military exchanges, high level visit, and even cooperation in UN peacekeeping forces. And also we see some ship visits and bilateral exercises between India and Vietnam. India and Vietnam, they are equally uncompromising partners, especially when it comes to the question of violations of the freedom of navigation. अगर दोनों ही कंट्रीज़ की जो मैरीटाइम टेरिटोरियल राइट्स हैं, इनकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी खतरा आता है, इसे लेकर दोनों ही कंट्रीज़ इस वायलेशन को लेकर अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। जो भी इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सॉवरेनिटी को लेकर जितने भी टेरिटोरियल राइट्स हैं, इंडिया एंड वियतनाम रिस्पेक्ट दीज राइट्स। न्यू दिल्ली हैज सपोर्टेड वियतनाम्स पोजीशन इन साउथ चाइना सी, एंड चाइना की जो डिस्टेबलाइजेशन एक्शंस हैं उनके अगेंस्ट हमने वियतनाम की पोजीशन को सपोर्ट किया है। वी आर बैक द वर्डिक्ट ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन 2016। देयरफॉर अगर हम ये सारे पैरामीटर्स देखें, इंडिया और वियतनाम, दे आर नेचुरल पार्टनर्स बिकॉज ऑफ द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, आर मैरीटाइम मल्टीलेटरलिज्म, maritime security outreach, and also to build the stronger network across the Indo-Pacific. So, what are the recent developments regarding the defense cooperation? Latest time में क्या क्या हुआ है? तो अभी recently तो इंडिया ने एक joint vision statement रिलीज़ की है on the India-Vietnam defense partnership towards 2030, जिसमें कि इंडिया और वियतनाम का जो एग्जिस्टिंग डिफेंस कोऑपरेशन है, इसका स्केल, इसका स्कोप, इसे इन्हांस किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस, बोथ द कंट्रीज दे हैव एग्रीड ऑन द अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ $500 million डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट। इंडिया $500 million का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट वियतनाम को एक्सटेंड कर रहा है। इंडिया और वियतनाम ने एक MOU भी साइन किया है, which is on the mutual logistic supports. India is about to give 2 simulators and a monetary grant towards the setting up of language and IT lab at the Air Force Training School for the capacity building of Vietnamese armed force. We discussed this in our current affair videos. इंडिया और वियतनाम के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है विनबैक्स। वियतनाम एंड इंडिया, दिस इज द मिलिट्री एक्सरसाइज। और जो नेवल एक्सरसाइज होती है
2020 में पेसेक्स हुई थी, जिसके अंदर इंडिया, रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था. बट here win backs becomes important. So what is the significance of India and Vietnam's defense ties? See, we talk about the significance. सबसे पहले तो यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड आ जाता है. जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड जो है, उसकी वॉल्यूम अगर हम देखें, सो दिस एंटायर सी लेन, it is important for both the countries. So the cooperation between India and Vietnam, especially towards this sea lanes of communication in Indo-Pacific, especially keeping the mind about the volume of maritime trade that passes through it, that is an important factor, an important area about which India and Vietnam both are concerned. So here they even need maritime cooperation of one another. Also, the signing of vision document, this comes when both the countries, in their maritime security domain, they are fighting against China's increasing muscle. So China is muscle flexing in this region. तो चाइना के रोल को यहाँ पे काउंटर करते हुए ये जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्ग्रुएंस है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, ये चाइना को देखते हुए भी इम्पॉर्टेंट है. म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं. Implementation of the projects under LOC, this will add substantially to Vietnam's defense capabilities. जो line of credit दिया गया है तो इससे वियतनाम की defense capability बढ़ेगी. इंडिया का मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड का जो विजन है वो पूरा होगा, स्पेशली इन द डिफेंस सेक्टर. इंडिया और वियतनाम के जो क्लोज टाइज हैं, जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. And it is also significant to protect the common interest. जैसे कि इंडिया हैज़ ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट इन वियतनामी वाटर एंड वियतनाम हैज़ टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद चाइना. तो इनको भी रिजर्व करते हुए इंडिया और चाइना के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन ज़रूरी है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग MSMEs into sustainable global value chains. So MSME, they contribute a lot in terms of job creation and sustainable development. But MSMEs are the one that have faced the harshest environments over the last few years. So in this video, we'll understand the significance of MSME, what are the issues that MSMEs are facing, especially post-pandemic, and what efforts was taken to unleash the potential of MSME, and how can MSME be brought into this inclusive and sustainable global value chain. So MSMEs को basically classify किया जाता है on the investment, on the basis of investment in their plant or the machinery or equipment, or according to the annual turnover, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज या फिर सर्विसेज देने वाले एंटरप्राइजेज भी इंक्लूड होते हैं. माइक्रो की कैटेगरी में वो आते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मोर देन 1 करोड़. स्मॉल वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मोर देन 10 करोड़. और मीडियम वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मोर देन 50 करोड़. माइक्रो जिनकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ थी, इनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ से कम का टर्नओवर रहता है. स्मॉल जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम थी लेकिन इनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम होता है. मीडियम जिनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम थी लेकिन इनका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम रहता है. अब MSME का सिग्निफिकेंस बहुत है. GDP में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है MSME का. इंडिया के 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है MSME के थ्रू. It contributes around 40% of our export. More than half of these MSMEs are located in rural areas, and therefore MSMEs, they have huge potential to boost the goal of आत्मनिर्भर भारत. इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए MSME का जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. So what are the issues in MSMEs in changing post pandemic? देखें, सबसे पहले इस सेक्टर के अंदर जो इनफॉर्मेलिटी है वो एक बड़ा इशू है, बिकॉज देयर आर मेनी एंटरप्राइजेज हु आर स्टिल अनरजिस्टर्ड.
अब इसी इनफॉर्मेलिटी की वजह से जो MSMEs हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, they cannot access the formal MSME support or any kind of financing, or they can even not even participate in the global value chains because there is large amount of informality. कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से MSME सीवियरली इम्पैक्ट हुए हैं, स्पेशली दोज जो कि सर्विस सेक्टर में थे. Now because of their small size and lack of access to the resources, that is a major problem. अब लगातार हम देख रहे हैं, देयर इज़ वॉर गोइंग ऑन, सप्लाई शॉक चल रहा है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, फूड फर्टिलाइज़र प्राइसेस सब इंक्रीज़ हो रहे हैं. इससे MSME के ऊपर और थ्रेट्स आ चुके हैं और खतरे आ चुके हैं. देयर आर सम फ्यू एक्सेप्शंस. अदर देन दैट, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं वहाँ पे डिजिटलाइजेशन अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है. देन क्लाइमेट क्राइसिस, ये और भी बड़ा फैक्टर है एज अ थ्रेट टू द MSMEs. तो चाहे वो MSMEs की इनफॉर्मेलिटी की वजह से आने वाली चैलेंजेस हों, कोविड-19 की वजह से होने वाले डिसरप्शंस हों, लैक ऑफ रिसोर्सेज हों, ग्लोबल चैलेंजेस हों, डिजिटलाइजेशन हो, एंड इवन क्लाइमेट क्राइसिस हो, we can see that MSMEs, they are in this bad place. So, what are the efforts that were taken to unleash the potential of MSME? As we said, MSMEs, they play a very important role to realize the dream of Atmanirbhar Bharat. And India का जो ambitious Make in India campaign है, उसका फोकस इसी के ऊपर है कि कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन है इसे बढ़ाएं, so that India can become the global manufacturing hub. इसे लेकर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दी जाती हैं, जैसे कि रिसेंटली ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो विच विल बेसिकली हेल्प टू प्रमोट एंड बूस्ट दिस सेक्टर. ऑल्सो देयर इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने भी एक प्रोपेलिंग नोशन दिया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, which basically deals about the fostering a culture of continuous improvement and innovation. ताकि overall we can reduce waste, we can increase the productivity, safety and quality. Along with United Nations Industrial Development Organization, we have other agencies also which support MSMEs like International Labour Organization, UNDP, UN Women, IFAD. All are working with MSMEs, especially after the changing post-pandemic economic landscape. From environment point of view, Bureau of Energy Efficiency, UNIDO, all of them, they provide energy efficiency advisory services to the MSMEs. So, under the partnership of, for action on green economy, the UNIDO and ILO, they are working on the inclusive and green transformation strategies, especially for the key manufacturing sectors, जिसमें UNDP, UNEP, UNITAR ये सब include हो जाएंगे. ILO is also working to formalize municipal solid waste management for clean food, textile, garment value chain in Odisha and Andhra Pradesh. Also, if we talk about employment, ILO along with FICCI, they are cooperating, they are supporting MSME to create and retain jobs. Here it is also important to know about the Start and Improve Your Business program, because that is helping over 1 lakh young people across 5 states to launch enterprises. So how can we bring MSMEs into this sustainable global value chain? The first step would be digitalization. There is a need for a replicable digital solution for MSMEs, which basically includes digital enhancement of machinery and their equipment which they are currently using. Also, we need initiatives like Digital Saksham, interlinking of Udhyam, E-Shram, National Career Services. जितनी भी ये पोर्टल्स हैं, स्कीम्स हैं, इन सब की इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, इन सभी इनिशिएटिव्स की इंटरलिंकिंग होनी चाहिए, so that we achieve the promise of targeted digitalization schemes. We need to reduce the environmental impacts of MSME operations. We need to green them. We need to foster green technology, innovation, so that we can accelerate the transition into a circular and low carbon economy.
We also need to increase the resilience of supply in support to the recent shocks. Production location for global value chains, they need to be diversified across the countries and regions. एंड देन लास्टली फॉर्मलाइजेशन. अगर हमें हमारे MSMEs का जो फुल पोटेंशियल है वो अनलीश करना है, उनको ग्लोबल वैल्यू चेन इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना है, सो फॉर दैट जो MSME ओनर्स हैं दे नीड टू फॉर्मलाइज देयर बिजनेस, दे नीड टू इन्वेस्ट इन देयर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.